آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات کس طرح سے خراب ہو رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس کے بعد ایک بڑا اعلان ہوا اسرائیل کی طرف سے جنگ کا۔ اس سے ساری دنیا کے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مر رہے ہیں۔ دنیا کے حالات دیکھ کر کچھ لوگ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، کچھ فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا جا رہا ہے۔ ان باتوں کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، پھر اس دن تم اس طرح کے حالات دیکھو گے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت رہائی کرتی ہوگی اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جب جا کال اور مری پڑے گی، مخالفت، افراتفری، جنگ و جدل اور اس طرح کی چیزیں ہمیں بائبل میں ملتی ہیں۔ ان حالاتوں میں ہر کوئی اپنا کردار، جو کچھ وہ سمجھتا ہے، جو کچھ اس کی سمجھ میں آتا ہے، ادا کرتا ہے۔ لیکن میں جو بات کروں گا، مسیحیوں کے کردار کی بات کروں گا جو ہمیں بائبل سکھاتی ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل میں لکھا ہے، اگر آپ لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو ان حالاتوں کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اس لیے یہ کرنا کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ آمین۔ سارے حالات اور ساری باتیں بتانے کے بعد جیسس نے کہا، یسوع مسیح نے کہا، جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ آمین۔ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسیحی کردار کیا ہونا چاہیے؟ بائبل میں لکھا ہے، جب یہ باتیں ہونے لگیں، جب یہ باتیں ہونے لگیں تو پھر آپ کیا کریں؟ سیدھے ہو جائیں۔ ایک بات، سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا ہے، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ تمہاری مخلصی کا ٹائم شروع ہوا ہے۔ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے سنا، ایک خبر آپ نے سنی پسرور کی، ایک لڑکے کو قتل کیا گیا، مسیحی لڑکا تھا۔ اس گاؤں کو میں جانتا ہوں، میں نے وہاں پر کئی سال خدمت کی ہے وہاں پر، اور کسی نہ کسی طرح سے تعلقات بھی ہیں۔ اس لڑکے نے جو کچھ کیا اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ اس نے اپنے موبائل پر لگائی اسرائیل کے حوالے سے، اور اس کو قتل کیا گیا۔
मैं ये बताना चाहता हूं तमाम मसीही नौजवानों को, अपना मसीही किरदार पेश करें। मुझे एक बहन ने कहा कि पास्टर साहब हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए दुआ करनी चाहिए, इस्राएल के लिए या फलस्तीन के लिए, हमें किसके लिए दुआ करनी चाहिए? तो मैंने उससे जवाब दिया, हर एक जो भूखा है, प्यासा है, मुश्किल में है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ हो तो मजलूम की हेल्प भी करनी चाहिए। हमें इस तरह के हिस्से लेने की जरूरत नहीं है कि हम किसके साथ हैं। मैं बताऊं आप किसके साथ हैं। आप उसके साथ हैं जो इन सब से ऊपर है, वो आसमान पर है, आप उसके साथ हैं। आप अगर दुआ करते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती कि क्या दुआ करें, तो जो यीशु मसीह ने सिखाया उन लफ्जों पर गौर करें। उसने क्या कहा? तेरी बादशाही आए। उसने क्या कहा? जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। उसने कहा तेरी कुदरत, जलाल, बादशाही हम तेरी मानते हैं। आमीन। आसमान पर एक खुदा है जो सारी चीजों को देख रहा है। ये सारी चीजें जो जमीन पर हो रही हैं, ये ऐसे नहीं है कि आसमान पर खुदा कुछ नहीं देख रहा। खुदा इन सारी चीजों को आसमान पर देखता है, और वो वही करेगा जो उसके पास मंसूबा है। हमें उसके काम में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। हमें मजलूमों के लिए दुआ करने की जरूरत है, और अमन की दुआ करने की जरूरत है, और साथ ये कि वो कहने की जरूरत है कि जिस तरह से खुदा चाहता है वही हो। खुदा अपने कलाम के मुताबिक सब कुछ जानता है कि उसने क्या करना है, वो सारी चीजों से वाकिफ है। इसलिए कलाम हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा, जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना। आमीन। सर ऊपर उठाना, इसका मतलब है कि सीधे होकर अपनी टेढ़ी राहों से, अपने गलत रास्तों से सीधे रास्ते पर आना, अपनी कमजोरियों से निकलना, तौबा करना, और अपने आप को खुदा के लिए संजीदा करना, खुदा के कलाम के मुताबिक करना अपने आप को, और फिर सर ऊपर उठाना है। ना अमेरिका की तरफ, ना इस्राएल की तरफ, ना फलस्तीन की तरफ। हमें इन मामलों में आने की जरूरत नहीं है। हम किसका साथ दें, किसकी बात करें, हम इस मामले में नहीं आ सकते। हमें अपने मामलात सर ऊपर उठाना है, जो सबसे ऊपर है। अपनी बात उसके साथ करें, अपनी दुआएं उसके सामने करें। आदमियों के सामने कोई बात करने की हमें जरूरत नहीं है। आदमियों को शो करने की और मोबाइल पर शो करने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी बातें अपने खुदावंद के साथ करनी है। जिस तरह से वो करता है, वो जानता है कि क्या करना है, हमें उसको डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब कुछ करना जानता है। इसलिए हमें यूं कहना बेहतर है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आमीन। सीधे होकर सर ऊपर उठाना आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी खबर है कि जब ये बातें होने लगें, जब ये हालात होने लगें, सारे हालात, सारी बातों को उसने खत्म करने के बाद यूं कहा कि जब ये बातें होने लगे, शुरू हों, जब ये बातों का आगाज हो, ये बातें अभी होने ही लगे, तो फिर आपने सीधे होकर सर ऊपर उठाना है, क्योंकि तुम्हारी
मखलसी नजदीक होगी। आमीन। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। वक्त आ गया है कि सीधे होकर सर ऊपर उठाया जाए। यह भी एक वक्त होता है। अयूब कहता है उसके 10वें बाब में 15वीं आयत में, ऐसे भी वक्त होता है जब हम सर ऊपर नहीं उठा सकते। ऐसे भी हालात होते हैं जब हम सर ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन यहां पर वो वक्त है कि सीधे होकर सर ऊपर उठाना। अयूब को पढ़िए 10वें अगर बाब की 15वीं मैं आयत। बदी करूं तो मुझ पर अफसोस, अयूब कहता है अगर मैं बदी करूं तो मुझ पर अफसोस, अगर मैं सादिक बनूं तो भी अपना सर नहीं उठाने का। अगर इनके सामने मैं सादक भी बनूं तो भी चूंकि मुश्किल में हूं, हालात खराब हैं, बीमार हूं, सर ऊपर नहीं उठा सकता और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। जब कोई अपनी मुसीबत को देखता रहता है तो वो सर ऊपर नहीं उठा सकता। कहता मैं इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी मुखालफत है, मेरी रसवाई हो रही है, इसलिए मैं अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। सर ऊपर उठाना मेरे लिए मुश्किल है। जब हालात इस तरह के हो तो सर उठाना मुश्किल होता है। एक कुबड़ी औरत को आप जानते हैं, 18 बरस से वो सर नहीं उठा सकती थी, और बाइबल में लिखा है इब्लीस ने उसको कुबड़ा कर दिया था। 18 बरस से वो जमीन पर देखती रहती थी, आसमान की तरफ नहीं देख सकती थी, क्योंकि इब्लीस ने उसे बंधा हुआ था, इब्लीस से मजबूर थी। और जब यीशु मसीह मिल गया तो उसने कहा ए औरत तेरी कमजोरी खत्म हुई, अब तू अपनी कमजोरी से छूट गई। तो बाइबल में लिखा है उसी दम वो सीधी हो गई और क्या करने लगी? खुदा की तमजीद करने लगी। जब कोई सर ऊपर उठाता है, आसमान की तरफ देखता है, तो वो खुदा की तमजीद करता है। इसका मतलब है कि सर ऊपर उठाना का मतलब है कि खुदा की तमजीद करो। ऐसे हालातों में खुद की तमजीद करो, ऐसे हालातों में दुआ करो, शुक्रगुजारी करो। ऐसे हालातों में आप उनके लिए जो दुश्मन के लिए भी आपको बाइबल सिखाती है कि उनके लिए अगर भूखा हो, अगर दुश्मन भूखा हो, अगर प्यासा हो, आप उनके लिए भी भलाई कर सकते हैं जो आपके साथ आपके हक में नहीं है। कलाम हमें सिखाता है। लेकिन अगर कोई बात करना चाहे, अगर आपके दिल में कोई बात हो, तो आपको ना मोबाइल पे ना किसी आदमी के साथ बात करने की जरूरत है, क्योंकि आपका मखलसी देने वाला आसमान पर है। सीधे होकर सर ऊपर उठाओ, आसमान पर बातें करो, दुआएं करो, अपने खुदा से बातें करो, जिससे बात का आपका हक बनता है। अगर आप मखलसी की बात करते हैं, मखलसी के लिए अगर बात करना चाहते हैं, हमें कौन छुड़ाएगा? ना शुमाल से, ना जनूब से, ना मशरक से, ना मगरब से। आपकी मखलसी आसमान से आ रही है। आमीन। आसमान पर निगाह करो, आसमानी बाप की तरफ देखो जो मखलसी देने वाला है, जिसने कहा जब ये सब बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। आपकी मखलसी पर मोहर हो चुकी है। आमीन। इफिसियों में 4 बाब की 30वीं आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारी मखलसी पर मोहर हो चुकी है, आपको मखलसी जरूर मिलेगी। इफिसियों के 4 बाब की 30, इफिसियों 4 बाब 30वीं आयत 30 वर्स 30। और खुदा के पाक रूह को
रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह के साथ रहो, रफाकत रखो, रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। मोहर हो चुकी है तुम्हारी। मखलसी के दिन के लिए रूल कुद्स ने आपको मोहर लगा दी है, इसलिए उसके साथ संजीदा रहो, उसे रंजीदा ना करो। क्यों? उसके जरिया से तुम्हारी मखलसी की मोहर लगी है। मखलसी की आपको अगर वैल्यू का पता है, आपको अंदाजा हो कि मखलसी क्या चीज है, तो पालूस रसूल से पूछिए, जिसके भेद से वाकिफ है, जो मखलसी का भेद जानता है। अगर आप मखलसी के भेद को समझें तो फिर खुशी के साथ सीधे होकर सर ऊपर उठाएं, क्योंकि तुम्हारी मखलसी का वक्त आ गया है। मखलसी का भेद सुनिए, रोमियो 8वां बाब, अठारहवीं आयत से पढ़िए। क्योंकि मेरी दानिश में उस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। आमीन। गौर से सुनिए, पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को कहता है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। दुनिया के दुख और दर्द, पालूस रसूल कहता है, दुनिया के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। कहता है, जिस जलाल में हम जाने वाले हैं, जो जगह खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है, जो जलाल हम पर जाहिर होने वाला है, कहता है इस जमाना के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उसका मुकाबला कर सके। उसने मुवाजना किया है, इस जमाना के दुख और दर्द उसने देखे हैं, फिर उसने खुदा का जलाल भी देखा हुआ है। इस जमाना के दुख दर्द बाइबल में पढ़ें तो आप उसके हैरान हो जाएं, कितने दुख उसने सहे। कोड़े, बैंत और कई तरह के खतरात, संसार इन सारी मुसीबतों को एक पले में डालता है। फिर वो चूंकि आसमान के जलाल को भी जानता था, उसने यीशु मसीह के जलाल को भी देखा, यकायक तीसरे आसमान पर भी चला गया था। वो इन चीजों का जब वो मुवाजना करता है तो फिर कहता है, मेरी दानिश्त में, दानिश्त किसको कहते हैं? कहते हैं मेरी समझ के मुताबिक इस जमाना के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। फिर कहता है, अगली आयत भी पढ़िए, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू के साथ खुदा के बेटों की राह देखती है। मखलूकात क्यों राह देखती है? मखलूकात क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म की चीजें, इंसान, सारी चरिंद, चीजें, चांद सूरज तारे जमीन आसमान, सारी चीजें मखलूकात में आती हैं। ये राह देखते हैं। कहते हैं मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके जो तुम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू के साथ खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। क्यों? गुनाह से, गुनाह करने से, गुनाह होने से
आसमान लानती हुआ, आसमान पर गुनाह हुआ, आसमान लानती हुआ, जमीन पर गुनाह हुआ, जमीन लानती ठहरी। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात लानती हुई। जमीन ऊंट कटारे उगाने लगी। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह की बादशाही आएगी, ना ये जमीन रहेगी ना आसमान रहेगा। आमीन। पहली जमीन और पहला आसमान मिट जाएगा, नया आसमान और नई जमीन होगी। फिर ये क्यों राह देखते हैं पुराने? इसलिए कि खुदा के बेटे खुदा के जलाल में आए, उनकी लानतें खत्म हो, उनको नया बदन मिल जाए। आमीन। मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। फिर आगे पढ़िए। इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई इस थी। वजह से कि मखलूकात पर बतालत का झूठ का इख्तियार है, उसके कब्जा में है, ना अपनी खुशी से हाँ? बल्कि इसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। आमीन। दाखिल हो जाएगी। ये इसलिए आरजू करती है कि ये भी दाखिल हो जाए, इसको भी दाखिला मिल जाएगा। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है। मखलूकात कराहती है, हमको ये और- मालूम है, और दर्द दर्द सा में पड़ी तड़पती है। तड़पती है। आगे जी। और ना फक्त वो ही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं अपने बातन में कुराहते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। अपने बदन के मखलसी की राह देख रहे हैं। अगली भी आज पढ़िए। चनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, हमारे पास एक उम्मीद है, उम्मीद के वसीला से हमें नजात मिली है। मगर जिस चीज की उम्मीद है जिस चीज की हमें उम्मीद है, जब वो नजर आ जाए जब वो चीज नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? फिर उम्मीद कैसी रही? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है अगर कोई चीज को कोई देख रहा है, उसकी उम्मीद क्या करेगा? उसकी क्या उम्मीद कर सकता है? लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह, उस मखलसी की हम सब्र से राह देख रहे हैं। मखलूकात कमाल आरजू से राह देख रही है। पौलुस रसूल इसका बयान इस तरह से करते हैं कि मेरी दनिश्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं, जिन्हें मर्जी दुख आ जाएं, इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके। होने वाला है, उसका मुकाबला नहीं कर, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देख रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। आप मखलसी के नजदीक पहुंचे हुए हैं, इसलिए इधर उधर की बातों को छोड़ें, जमीन के दुखों को ना देखें। कहता है अगर मैं दुखों को, मुसीबतों को देखता हूं तो ऊपर नहीं देख सकता, जमीन पर के मुसीबतों को नहीं। हमें हर एक हालात में एक ही कलाम मिला है कि जब ऐसी बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। आए अपनी मखलसी के लिए शुक्रगुजारी करें, सीधे होकर सर ऊपर उठाएं और अपने दिल की बातें जो ऊपर बैठा उसके साथ करना शुरू करें। हालेलुया। आसमान पर के बादशाह के साथ बातें करें। हालेलुया। हर एक हालात के बारे में उसके साथ बातें करें। हालेलुया। जिस तरह से